Hi there. So the next thing that we'll be understanding is how to calculate the fees for hedge funds. Again, the same application you would find it for private equity as well, but here we are going to focus about hedge funds, and this is definitely the most practical or the most interesting part of this chapter. Alright, up till now in this chapter we have been understanding कि चीज़ें होती क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते क्या है, उनके अंदर जो भी एसेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके रिटर्न्स कैसे रहते हैं, हाउ दे रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट और द बॉन्ड मार्केट पर से. Alright, so we have been understanding all those things, but now what we need to do is we need to learn how to exactly calculate the fees for the hedge funds. Alright, so we know that hedge fund is a pool of money that is coming in from various investors who have limited liability, and there is a general partner sitting here who makes investment decisions for them. However, it is not much regulated, and they tend to generate a good alpha or maybe beat the benchmark, whatsoever benchmark they are setting. It could be S&P 500 or it could be something else as well. Alright, so talking about the fee calculation part. Alright, as we all know, there are two parts of fee calculation. One is the management fee and the other one is the incentive fee. Alright, so when we talk about the management fee, वो तो क्या होता है कि आपका पैसा मुझे दिया है, जो भी पैसा आपने मुझे दिया है उसको मैनेज करने का मैं एक फिक्स प्रोपोर्शन लूंगा ही लूंगा, irrespective how I am performing. Alright, so generally it tends to be around 1% or 2%. Alright, 2% का नाम hedge fund में थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है, so yes, we will stick to 2% for now. Alright, so that is management fee. Now what else the hedge fund managers tell you is कि I am managing your money, and at the very same time, in case I am generating good returns for you, so I should be remunerated for that as well. So the remuneration which they charge for making this returns, the extra returns or returns over and above the benchmark or over and above the normal returns which people generate, उसका भी वो लोग एक फीस चार्ज करना चाहते हैं. What that fees is known as is the performance fee. Alright, तो say for example मैंने आपका 100 करोड़ रुपया 150 करोड़ कर दिया, तो ये 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ है तो 50 करोड़ का फायदा हुआ है. Now वो 50 करोड़ जो मैंने आपका फायदा कराया है, I should be getting a good performance fee out of that 50 crore, so that we call generally the performance fee, which tends to be on the higher side, 10 to 20% के बीच में वो करीबन रहती है. Now these are simple two things which we need to know, that is, one is the management fee and the other one is the performance fee. Apart from that, we also need to understand some of the provisions that get added in the contract between the investor and the fund manager. Alright, so there could be contracts of maybe soft hurdle, hard hurdle, or there could be a provision of high watermark. तो ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे होती क्या है, but we need to know that there is a very simple structure of management fee and performance fee. However, that management fee and performance fee वो तो जो रहता है उसके साथ साथ बहुत सारे provisions भी contract में add होते हैं इन्वेस्टर्स और hedge fund manager के बीच में. तो वो exactly क्या होता है, something that we are going to understand. The first provision that I am going to talk to you about is high watermark provision. Now what exactly high watermark provision is? Say for example मैं आपका hedge fund manager हूँ, आपने मुझे पैसा दिया है. Now I am managing your money. आपने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए मैनेज करने के लिए. मैंने पहले ही साल वो 100 करोड़ के 92 करोड़ कर दिए. Alright, so मैंने 8 करोड़ का क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया आपके लिए. Alright, not a problem. Could happen in hedge fund industry and other asset classes as well. So that is there. Now in the next year, the markets are very good. I have given a very good return. So say for example, मैंने वो 92 करोड़ से बचे, मेरे पास पहले 100 थे, अब 92 हो गए. वो 92 करोड़ के मैंने 120 करोड़ कर दिए. Alright, वो 92 करोड़ से मैंने 120 करोड़ कर दिया. तो हुआ क्या exactly? I started with 100, turned it into 92 and then turned it into 120. Alright, तो जो मैंने परफॉर्मेंस फीस की बात की थी आपसे, मैंने क्या बोला था, जो भी मैं आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा हूँ उस पर मेरे को आपको परफॉर्मेंस फी देना चाहिए. Now that performance fee is not calculated from 92 to 120. It is rather calculated from 100 to 120. Alright, high watermark provision क्या कहता है कि जितना आपने लॉस कर दिया है वो लॉस को आप अगर सिर्फ रीगेन कर रहे हो तो उस पे मैं आपको परफॉर्मेंस फी नहीं दूंगा. तो आपने पहले मेरा 100 का 92 किया ना, आपने मेरा 8 करोड़ रुपया तोड़ा है, तो उस पे आपको नहीं मिलनी चाहिए. अगर वो 8 करोड़ आप रिकवर भी कर पाते हो मार्केट से तो आपको नहीं मिलनी चाहिए. सो द लॉजिक इज सिंपल. इफ इट इज 100 टर्न्स इनटू 92 एंड देन इनटू 120, देन द परफॉर्मेंस दैट विल कंसीडर इज नॉट 28 बट रादर ओनली 20. Alright, आपने परफॉर्म सिर्फ 20 करोड़ किया है, बिकॉज पहले 8 करोड़ को तो आपने नुकसान किया था. तो जो आपने 92 से 120 किया उसमें से 8 तो सिर्फ आपने रिकवर किया है, बाकी का जो 20 आया वो आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया है, तो उस पर आपको परफॉर्मेंस फी मिल जाएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. ऑलमोस्ट यू वुड फाइंड इट विद एवरी hedge fund. Almost you'd find it with every hedge fund that there is a high watermark provision included in the contract. Alright.
नेक्स्ट अप वी हैव इज सॉफ्ट हर्डल एंड हार्ड हर्डल। ऑलराइट, सॉफ्ट हर्डल हार्ड हर्डल क्या होता है? फॉर एग्जांपल सॉफ्ट हर्डल कहता है या फिर हार्ड हर्डल कहता है, या फिर मैं पहले सिर्फ हर्डल रेट को डिस्कस करता हूँ, देन आई विल कम टॉक अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड हर्डल। ऑलराइट, हर्डल रेट क्या कहता है कि आपका 100 करोड़ रुपए आपने मुझे दिया है, मैं एक हर्डल रेट तय कर रहा हूँ, मैं एक हर्डल रेट फिक्स कर रहा हूँ, दैट इज से फॉर एग्जांपल 5%। ऑलराइट, मैंने एक हर्डल रेट फिक्स की, दैट इज 5%। ऑलराइट, तो अगर आपका 100 करोड़ मैं 105 करोड़ भी करता हूँ, ऑलराइट 105, 104.9 करता हूँ या फिर 105 से कुछ भी कम कर रहा हूँ, इन दैट केस आई विल नॉट बी चार्जिंग एनी परफॉर्मेंस फ्री फ्रॉम यू। मैंने एक हर्डल सेट किया अपने लिए कि अगर मैं इतना बनाऊंगा, इससे ऊपर बनाऊंगा रादर, तो ही मैं आपसे परफॉर्मेंस फी चार्ज करूंगा। सो इफ देर इज एन हर्डल ऑफ 5% एंड योर मनी एंड द इन्वेस्टेड मनी दैट वी हैव इज 100 CR, तो 100 का 105 भी होता है या उससे थोड़ा सा कम भी होता है, तो आई विल नॉट बी चार्जिंग एनीथिंग। ऑलराइट, अगर 105 एंड अबव होता है, so let us keep it this way, anything less than 105 I will not be charging any fee. If it is anything 105 and above, then only I'll be charging my performance fee. Alright, so very clear कि 100 करोड़ से 105 करोड़ हो रहा है या फिर 105 से 106 हुआ, 107 हुआ, तो तब मैं ये डिफरेंस निकाल के परफॉर्मेंस फी चार्ज करूंगा। अदरवाइज 105 या 105 से कुछ भी कम हो रहा है, इन दैट केस आई माइट नॉट चार्ज दी फी। Alright, so this is one thing that you need to understand. The other thing that you need to understand here is कितने पे आप परफॉर्मेंस फी चार्ज करोगे। तो से फॉर एग्जांपल वापस यही नंबर्स की बात करते हैं, तो 100 आपका 105 हुआ, या फिर मान लो आपने 5% हर्डल तय किया था और 100 करोड़ आपका 105 की जगह ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 120। ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल 120, तो आपने कहा पोर्टफोलियो गेन कितना हुआ है आपका? 20 CR हुआ है। ठीक है, पोर्टफोलियो गेन कितना हुआ है? 20 CR हुआ है। तो अब इसमें दो हर्डल्स होते हैं, एक सॉफ्ट हर्डल होता है और एक हार्ड हर्डल होता है। सॉफ्ट हर्डल क्या बोलता है? 100 का आपने 120 किया, 5% वाला जो थ्रेशोल्ड लाइन है विच वाज 105 करोड़, वो आपने क्रॉस किया। ऑलराइट, 100 का आपने 105 का ये थ्रेशोल्ड लाइन था, आपने क्रॉस किया, 120 तक आप लेके गए, तो आपको परफॉर्मेंस फी कितने पे मिलेगी? पूरे के पूरे 20 करोड़ पे मिलेगी। ये सॉफ्ट हर्डल बोलता है। ऑलराइट, ये ध्यान से समझना, 100 करोड़ है, 5% हर्डल है, मतलब 105 क्रॉस करते ही परफॉर्मेंस फी मिलना चालू। तो मान लो 105 के 120 हो गया, तो 100 का 120 हो गया, तो ये जो 20 करोड़ है पूरे के पूरे पे आपको परफॉर्मेंस फी जो है वो मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। हार्ड हर्डल में क्या हो रहा है? हार्ड हर्डल में 100 करोड़ था, 5% आपका हार्ड हर्डल रेट था। ऑलराइट, 5% आपका हार्ड हर्डल रेट था। इन दैट केस 105 अगेन इज योर थ्रेशोल्ड लाइन, तो आपको परफॉर्मेंस फी अब कितने में मिलेगी? सिर्फ 15 पे मिलेगी। ठीक है, जो भी आपका हर्डल था 105 वो आपने क्रॉस किया, हर्डल से आप कितना आगे लेके गए पोर्टफोलियो को, वो वैल्यू और माइनस जो हमारी थ्रेशोल्ड लाइन थी उसका जो डिफरेंस है उसी पे परफॉर्मेंस फी में आपको मिलेगी। सो वेरी सिंपल। ठीक है, आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है या फिर एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाता है। बेंचमार्क इज नॉट द राइट वर्ड अगेन, एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाता है कि यहाँ से आप ऊपर गए तो आपको परफॉर्मेंस फी मिलेगा। ठीक है, आप कितना ऊपर गए दैट इज वेरी गुड, वो इतना मैटर नहीं करता है, बट आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। ऑलराइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे आपको परफॉर्मेंस फी मिले दैट इज सॉफ्ट हर्डल। खाली यहाँ से लेके यहाँ तक पे आपको परफॉर्मेंस फी मिले दैट इज हार्ड हर्डल। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव अहेड विद एन एग्जांपल। ऑलराइट, सो वी हैव एन एग्जांपल हियर। ऑलराइट, एक हेज फंड है जिसकी इनिशियल वैल्यू एट इनिशिएशन वाज $110 मिलियन। ऑलराइट, $110 मिलियन का उसका वैल्यू था इनिशिएशन पे। मैनेजमेंट फी 2% बोला गया, इंसेंटिव फी 20% बोला गया। तो जनरली इसको हेज फंड इंडस्ट्री में 220 कोट किया जाता है। ठीक है, कोई किसी को बोलेगा कि हेज फंड 220 चार्ज करता है, मतलब लोग समझ जाएंगे कि 2% मैनेजमेंट है, 20% आपका इंसेंटिव है। ऑलराइट, परफॉर्मेंस फी इंसेंटिव फी सेम चीज होती है। ऑलराइट, देन वी हैव सॉफ्ट हर्डल। सॉफ्ट हर्डल कितना है? सॉफ्ट हर्डल इज 5%। ऑलराइट, अगेन देयर इज अ थ्रेशोल्ड लाइन बट इट इज अ सॉफ्ट हर्डल। अगर 100 करोड़ का 120 करोड़ भी हो रहा है, ऑलराइट, तो परफॉर्मेंस फी पूरे 20 पे ही कैलकुलेट होगा क्योंकि आपने 105 वाला जो नंबर है वो क्रॉस कर दिया है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ईयर 1 में क्या हुआ है? ईयर 1 में ये 110 मिलियन 102.2 मिलियन हो गया। ईयर 1 में ये 110 मिलियन कितना हो गया है? 102.2 मिलियन हो गया, मैंने नुकसान कर दिया है। ऑलराइट, एंड ईयर 2 में क्या हो गया? 102.2 मिलियन को मैंने 118 मिलियन कर दिया, तो मैंने
बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट किया। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई कैलकुलेट द फीस एंड एट द वेरी सेम टाइम द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर। ऑलराइट, सो नेट रिटर्न उसका कितना आ रहा है आफ्टर इंसेंटिव फी, आफ्टर मैनेजमेंट फी, समथिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट। 2 ईयर्स है हमारे पास, तो दोनों ईयर का कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रहे, जिस भी ईयर में लॉस हो रहा है उस ईयर में इंसेंटिव फी या फिर परफॉर्मेंस फी की तो बात ही नहीं होगी, बिकॉज आपने लॉस कर दिया है। तो लॉस करने पे अगर आप उससे फीस ले रहे हो या ऐसा तो नहीं होगा कि आपको देनी पड़ेगी, बट देयर द क्वेश्चन ऑफ इंसेंटिव फी और परफॉर्मेंस फी इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड बिकॉज देयर इज अ लॉस दैट इज हैपेंड इन द पोर्टफोलियो। ऑलराइट, सो इन द फर्स्ट ईयर लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट फी। ऑलराइट, सो इट वुड बी 2% ऑफ व्हाट, ठीक है, ईयर 1 के एंड में चार्ज कर रहा हूं, बट 2% ऑफ व्हाट, जो ईयर के स्टार्टिंग में फंड की वैल्यू थी, दैट वाज 110। तो 2% ऑफ 110 इज नथिंग बट 2.2 मिलियन। कैलकुलेटर पे आप लोग 0.02 इंटू 110 करोगे। ऑलराइट, सो विल गेट दिस आंसर 2.2 मिलियन। जनरली ईयर के बिगिनिंग वाले फंड वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है, बट कोई कोई केस में लोग ईयर के एंड वाले को भी कंसिडर कर लेते हैं, बट दैट वुड हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग अकॉर्डिंगली जो जनरल नॉर्म रहता है कि ईयर के बिगिनिंग वाला ही कंसिडर होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। और रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, नाउ देखो यहाँ पे तो नुकसान हो गया, तो परफॉर्मेंस फी की तो बात ही नहीं होगी। इन्वेस्टर का रिटर्न कितना होगा, फंड का वैल्यू कितना हो गया उसका 102.2 हो गया ईयर 1 के एंड में। ऑलराइट, 102.2 फंड का वैल्यू है, इसमें से मैंने क्या दिया होगा उसको, मैनेजमेंट फी पे करी होगी। तो कितना बचा मेरे लिए, 102 माइनस 2.2। वेरी सिंपल, मेरे फंड की पूरी वैल्यू वाज 102.2, उसमें से आई हैव पेड हाउ मच, आई हैव पेड 2.2 एज मैनेजमेंट फी, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। ऑलराइट, दैट आई एम सबट्रैक्टिंग इट एंड देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मेरा जो इनिशियल वैल्यू था, बिकॉज दिस इज द एंड वैल्यू, 102.2 माइनस 2.2 दैट इज 100 इज द एंड वैल्यू। एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग वैल्यू माइनस 1 वुड गिव मी द परफॉर्मेंस ऑफ माय fund for the investor, which will be nothing but 9.1%. Pause the video for a second and then calculate it yourself. Make sure that you're getting these numbers right. Alright, next is there is no incentive fee calculation, so I'm not calculating that. अगर incentive fee होती तो मैं वो investor के return में consider करता भी। Alright, which I'll be doing in the second year. So let's wait for that. Next year, what has happened is the fund value has gone up from 102.2 to 118. It has increased drastically. So let's see how it works out, how the calculation works out. So we have the management fee. Alright, management fee कैसे calculate होगी, अब हमारी सेकेंड ईयर में हमारा जो फंड है वो कितना था, 102.2 था। ऑलराइट, ये हमारा फंड था, इसमें से हमने अभी तक मैनेजमेंट फी माइनस नहीं की है। ऑलराइट, तो मैनेजमेंट फी अब अगले साल की कैसे कैलकुलेट हो रही है, ध्यान देना। 102.2 आपके फंड की वैल्यू उसने छोड़ी थी, मैनेजर ने अपनी फी उसने माइनस नहीं की थी अभी तक। यहाँ पे भी देखो हमने बाद में माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे भी हम अब माइनस करेंगे। तो 102.2 माइनस 2.2 हमने किया, तो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 100, उस पर 2% चार्ज होगा, दैट वुड बी 2 मिलियन। देखो सीधी सीधी बात है, 102.2 पे सीधा चार्ज नहीं होगा, बिकॉज उतना पैसा फंड में बचा ही नहीं है। 2.2 तो मैनेजर ऑलरेडी अपनी फी ले चुका है, वो माइनस होगा उसमें से। ऑलराइट, ये तो ग्रॉस वैल्यू लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट, दीज आर द ग्रॉस वैल्यू, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। ऑलराइट, सो मैनेजमेंट फी इज 102.2 माइनस 2.2 इंटू 2%। नेक्स्ट वी हैव इज नेट रिटर्न ऑफ मैनेजमेंट फी। ठीक है, अब इन्वेस्टर का नेट रिटर्न कितना है आफ्टर कंसिडरिंग ओनली द मैनेजमेंट फी। ऑलराइट, मैं मैनेजमेंट फी को कंसिडर कर रहा हूं, उसके बाद नेट रिटर्न कितना बच रहा है वो देखते हैं। सो द नेट रिटर्न वुड बी, फंड की वैल्यू कितनी हो गई 118। ऑलराइट, 118 फंड की वैल्यू हो गई। अब मैं इस साल की क्या पे करूंगा, इस साल की मैं मैनेजमेंट फी पे करूंगा। सो इस साल की मैनेजमेंट फी अगर मैं पे करता हूं तो कितना आता है, 118 माइनस 2 डिवाइड बाय 100 माइनस 1। देखो डिवाइड में मैंने 100 लिया, ये 100 कहां से आया है, ये मेरे फंड की वैल्यू है, ये रही। आफ्टर व्हाट, आफ्टर कंसिडरिंग फॉर द मैनेजमेंट फी। Alright, so कितना आया नेट रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर आफ्टर मैनेजमेंट फी, 118 माइनस 2 अपॉन 100 माइनस 1, दैट इज 16%। Alright, that is nothing but 16%. So ध्यान रहे कहाँ पे मैनेजमेंट फी माइनस कर रहे हो। Alright, I'll go through the question again once with you, but you need to understand that why are we subtracting that, because these are the gross values and we need to find out the returns based on the net value, what is actually left with the investor after deducting for the management fee. Likewise, you need to calculate the incentive fee as well. Alright, you need to calculate the incentive fee as well. अब incentive fee कैसे निकलेगी, कितनी ग्रॉस वैल्यू बची है 118 माइनस 2। क्यों माइनस 2, क्योंकि तो ग्रॉस है, ग्रॉस में से मैनेजमेंट फी माइनस हो जाएगी, तो मैनेजमेंट फी 2 मिलियन इस साल की तो माइनस हो गई, तो इतना बचा
और आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? योर इनिशियल वैल्यू वाज 110. ऑलराइट, योर इनिशियल वैल्यू वाज 110. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने 110 लिया है. क्यों 110 लिया है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ हाई वाटरमार्क प्रोविजन. दैट पहले आपने मेरा पैसा 110 से स्टार्ट किया, फिर आपने 110 से किया आपने मेरा पैसा, फिर 102.2 कर दिया, फिर आपने 118 किया. तो मैं ये वाला कंसिडर नहीं करूंगा इंसेंटिव फी के लिए, मैं हाई वाटरमार्क करूंगा. पहले आपने 102.2 से जो 110 किया है वो तो मेरा आपने लॉस रिगेन किया है, फिर वहां से लेके आगे जो गए दैट इज द प्रॉफिट दैट यू हैव एक्चुअली जनरेटेड. सो 118 minus 2 is 116. 116 minus 110 is the beginning value. Alright, this is the beginning value, this is the end value, and ये minus कर दिया ताकि net end value आ जाए. Into 20%. 20% is nothing but the incentive fee percentage, and the number turns out to be 1.2 million. Make sure that you are calculating this. Pause the video and calculate these. Alright, very important. Alright, but first thing first, we all need to understand क्या हमको इंसेंटिव फी कैलकुलेट करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी. देयर वाज अ सॉफ्ट हर्डल ऑफ 5% व्हिच वी हैव अचीव्ड. ऑलराइट, व्हिच वी हैव अचीव्ड. 110 मिलियन से 118 मिलियन का हाई वाटर मार्क है. ठीक है, आप उस हिसाब से भी देखोगे तो यू हैव प्रीटी मच अचीव्ड योर सॉफ्ट हर्डल ऑफ 5%. और सॉफ्ट हर्डल है इसीलिए पूरे 110 से लेके जितना भी प्रॉफिट बना है उस पर आपको इंसेंटिव फी मिल रहा है. Alright, so this is how it works around. EV ये अपना into 20% करके 1.2 million आ गया. टोटल फी कितना बन रहा है? The total fee that you are getting is 3.2 million. कैसे आया 3.2 million? For the fund manager, let's see. First, management fee of 2 million, and then the incentive fee that he has received for 1.2 million. Alright, so 3.2 million मेरा दो जगह से आ रहा है, 1.2 और 2 से. Alright, so quite simple. Now last thing that we are left with is the net return which the investor is getting after considering for both the management fee as well as the incentive fee would be, let's see, मेरा fund value कितना था year के end में? 118 minus 3.2. क्यों minus 3.2? because now I am considering both these values, that is the management fee as well as the incentive fee, and then I am arriving at the net return for the investor after deducting for these expenses. So 118 minus 3.2 divided by 100. क्यों 100? बिकॉज मेरा लास्ट ईयर का वैल्यू 100 था. इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 14.8% विल बी गेटिंग. ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लुक एट दिस and make sure that you are calculating these numbers, and then you are perfectly sound with how to make these calculations. Thank you.